قاری عثمان صاحب صدر جمعیت علماء ہند، مفتی عزیز الرحمان صاحب، مولانا سید مصطفیٰ رفاعی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا محمد موسیٰ مقرور صاحب اور علامہ مجیبی صاحب اور ڈاکٹر مقدم صاحب، آپ حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور میرے سامنے تشریف فرما پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مہمانان کرام، میں سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ مرکز المعارف اور مرکز المعارف کے خدام اور طلبہ عزیز اور خیر خان اور بھائی خان سب کے لیے انتہائی مسرت کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میں سب سے پہلے آج کے اس خوشی کے موقع پر اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا سید مسعود مدنی رحمۃ اللہ علیہ یاد کرنا چاہتا ہوں اور کرانا چاہتا ہوں۔ اس لیے شاید بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے یہ پورا مرکز المعارف کا کانسیپٹ یہ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ برین چائلڈ ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ایک دو مرتبہ حضرت کے ساتھ انگلینڈ گیا، انگلینڈ کے سفر پر وہیں سے ہماری بات چیت ہوتی تھی کہ بھئی علماء کرام کا ایک نیا ایک فوج تیار کرنے کی ضرورت ہے جو انگریزی زبان سے لیس ہو، اور مجھے حضرت فرماتے تھے کہ تم اپنے یہاں سے انگریزی میڈیم ایسے اسکول بھی کھولو جہاں سے دینی تعلیمات بھی ہوتے ہو۔ حضرت کو بڑا افسوس ہوتا تھا یو کے میں جا کر، میں اس زمانے میں کئی مرتبہ ساتھ میں گیا، حضرت کو ایک بات کا افسوس ہوتا تھا اور فرماتے تھے کہ ہیٹر ٹیکنے والے بوڑھے بنگلہ دیش پاکستان کے بوڑھے بوڑھے لوگ جو سردیوں میں مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں، حضرت کا افسوس ہوتا تھا کہ یہ مسجد مسلمان خرید رہے ہیں۔ فرماتے تھے کہ اللہ نہ کرے اگر اس میں نوجوان نہیں آتے ہیں اور نوجوانوں کو نہیں لایا جائے گا، اللہ نہ کرے وہ دن ایسا آ جائے کہ واپس عیسائی لوگ ان مسجدوں کو خرید کے اور پھر اس کے بعد چرچ نہ بنا دیں۔ حضرت کے دل کی ایک کڑن تھی، فرمایا کرتے تھے کہ بدر الدین پورے ملک میں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جہاں ہم نوجوان بچوں کو انگریزی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیمات دے سکیں۔ اور حضرت کے اشارے پہ ہی آسام میں ہم نے الحمدللہ کئی ادارے قائم کیے مرکز المعارف کے برانچ کے حساب سے، اور اب ہزاروں بچے اس میں الحمدللہ فارغ بھی ہو چکے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ اس ادارے کی فکر میں حضرت ہی کی تحریک تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا برین چائلڈ ہے، حضرت کی فکر کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان کی اس امانت کو سنبھالنے کی آگے لے جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کچھ کہنے کے لیے
मेरे ही मशवरे से लिख के दिया गया, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम है अभी 1 महीना हॉस्पिटल में रह के आया हूँ, बहुत देर तक मुझे मुश्किल है, लेकिन मैं 2-3 सफ़ात उसके पढ़ दूंगा। उसके बाद हमारे कादर अजीज नायब शकुल हदीस हमारे जामिया इस्लामिया जलालिया बजाई के यहाँ मौजूद है, तो बाकी इसको वो पढ़ देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम और एहसान है कि उसने हमको मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 25वें सालगिरह यानी सिल्वर जुबली के इस मौके पर मदनी हाल में यकजा होने का ज़रूरी मौका इनायत फरमाया। यकीनन खुशी के इस मौके पर दूर दराज से तशरीफ लाए हुए तमाम मेहमानान किराम का मैं तहे दिल से पुरतबाक इस्तकबाल करते हुए हम तमाम हाजियान मरकज़ुल मारिफ के दिल फरहत व इंबसात से लबरेज है। मैं अपने इन तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर उनकी अपनी तरफ से और अजमल फैमिली की तरफ से और मरकज़ फैमिली की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुबारक मौके पर मैं अपने रुफ़क़ा का अहबाब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और बारगाह एज़िदी में दस्त बदुआओं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के शुरूर और फितन से महफूज फरमा कर इस प्रोग्राम को कामयाबी से मकबूलियत से हमकरार फरमाए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हमारे साथी जो मरकज़ुल मारिफ से मुख्तलिफ सालों में पढ़ के निकले, यहाँ अभी मिल्लत टाइम्स वाले जब दिखा रहे थे तो मुझे ख्याल हुआ कि एक जो फोटो उन्होंने दिखाया उससे बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होगी। मरकज़ुल मारिफ शुरू ही हुआ था किराए के कमरे से, जिसमें हमारे ये बच्चे बराबर सो भी नहीं पाते थे, और आज भी 25वां साल पूरा करने के बाद लोग ये समझते हैं कि मौलाना बदरुद्दीन साहब तो करोड़पति है, उनका इदारा है, पता नहीं कितनी शानदार बिल्डिंग बना चुके होंगे और कितने इदारे। आज भी हमारे बच्चे बम्बई में जब बारिश आती है तो इस तरफ का उस तरफ और उस तरफ का इस तरफ करके, लेकिन कारवां चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी भी बिल्डिंग बनाने की कभी फिक्र ही नहीं की। आज हमारे तकरीबन 42 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल आसाम में, तकरीबन 40-42 कॉलेजेस हैं, 18,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन 99% किराए के मकानों में, 99%, और उसमें झोपड़े भी हैं। एक ही नजरिया होता था मेरा कि जब तक मैं बिल्डिंग बनाने की फिक्र में जाऊंगा, लोगों से मांगूंगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसके इंतजार में एक नस्ल निकल जाएगी। और आज का नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह सामने है। 20-20, 25-25 साल से हमारे बहुत से तलबा ऐसे आज पूरी दुनिया में, मैं जाता हूँ साउथ अफ्रीका, लंदन के बैठे हुए हैं, सऊदी अरब में, जब बच्चे मिलते हैं और बताते हैं कि मैं तो मालिक से पढ़ के आया हूँ, तो दिल खुशी होती है। इसलिए जो मिल्लत टाइम्स वालों ने दिखाया वो हमारी बिल्डिंग नहीं है, वो पीछे जावेद साहब मिनिस्टर थे बम्बई के किसी डिपार्टमेंट के, और उनकी अपनी बिल्डिंग है और वो मकबूजा बिल्डिंग है। हमारी जगह भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। 20 साल से हम उनके साथ लड़ रहे हैं। वो बड़े मिनिस्टर थे, उन्होंने कब्जा कर लिया, जो हमारे नाम से अलॉट, तो वो भी एक जंग है, जारी है। गाली मुझे मिलती है, ये अच्छा, गाली मुझे देता है आदमी अजीब। तो बहरहाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मैं सबसे दुआओं के साथ, बहुत कुछ कहने का नहीं है, मुझे अपनी कमी का एहसास है। कम से कम सिल्वर जुबली के मौके पर आज 11, 12, 13 इदारे के बारे में कहा गया। अल्लाह करता है इदारे भी सिल्वर जुबली हो जाते, 25 हो जाते तो बड़ी खुशी होती।
मैं अपने साथी डॉक्टर उमर साहब, गौतम साहब, मौलाना बुरहानुद्दीन साहब से और जो साथी मेहनत कर रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि अब जल्द से जल्द स्पीड को बढ़ाएं और मदारिस आपकी तरफ मुतवज्जे है। इस वक्त तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह हर मदरसा अपने अंदर इस इदारे को चालू करना चाहता है, अपने यहाँ इस सेंटर को ले जाना चाहता है। ये मिलत टाइम्स वाले मौलाना भी शम्स तबरेज़ साहब मरकज़ुल मारिफ के बच्चे हैं, मुझे खुशी है। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बहुत से हमारे बच्चे सोशल मीडिया के लाइन से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये कहना होता है कि अब हमको आसाम के खास करके एनआरसी के मसले में जो हम लोग भुगत रहे हैं उससे बहुत एहसास होता है कि हमारे उलमा किराम के अंदर भी वकला की बहुत जरूरत है, एडवोकेट्स की बहुत जरूरत है। ऐसे एडवोकेट्स जिनके दिल में कौम का दर्द हो और वो वाकई उसके पीछे हम लोग हर किस्म का इंशाअल्लाह इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इदारा तैयार है आपको पुष्ट बनाई के लिए। बस कभी आप हजरात में से कुछ लोगों को उठ के आना होगा। आइए, आगे बढ़िए, कुछ लोग अपने आप को वॉलंटियर करिए, इंशाअल्लाह ये सपना भी हमारा पूरा होगा। मैंने अपने साथियों को मशवरा दिया कि सोशल मीडिया में हमारे साथियों का दुख रहता है कि बड़े मीडिया वाले हमको नहीं बुलाते। मैंने कहा आज पॉजिटिव का जमाना नहीं है, नेगेटिव करो, हमला करो, उल्टी पुल्टी बातें करो और अपने सोशल मीडिया में अपने ख्यालात को इजहार करो। मजबूर हो जाएंगे, वो बैरियर नहीं। आज पता नहीं कहां से गांव में देहातों में हजार किलोमीटर जाके मीडिया वाले पत्ते और उठा के ले आते हैं अच्छी चीजों का। इसलिए बस हिम्मत की जरूरत है। अल्लाह ताला सारे आने वालों को अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं इस मौके पर अगर हजरत मौलाना महबूब रहमान साहब, साबिक मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, मौलाना खामोश साहब और सर-ए-फ़हरिस्त हजरत रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के पूरे इंतजामिया से हजरत गवाह है। झगड़ के बाकायदा दारुल उलूम देवबंद में इस ब्रांच को हजरत ने मंजूरी दिलाई। इसलिए हर कदम पे हजरत की याद आती है। जिस चीज को ठान लेते थे करके छोड़ते थे। अल्लाह ताला हम लोगों को हजरत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इदारे को कबूल फरमाए। जिस तरीके से हजरत रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती इदारे को हासिल थी, मैं आप सबके सामने भाई महमूद साहब से गुजारिश करूंगा साल में एक आध दिन कभी निकाल कर इदारे का मुआयना फरमाए, देखें। हम लोगों के जहन में हम आएंगी है, इदारा दास्ता में बहुत कामयाब चल रहा है माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हजरत की आमद को कबूल फरमाए। बहुत लंबी तकरीर की जरूरत है, मौलाना मुख्तसर 2-4 लफ्ज़ चारों ने बड़े शौक से लिखा है, उसको आप पढ़ लीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।